Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back. So let's get started. पिछली बार हम कर क्या रहे थे? Well, पहले तो याद दिला दूँ. We're doing analysis and interpretation of financial statement. First chapter dealt a lot with the theory. I try to tell the other batch, मतलब एक दूसरा लेवल जो मैं पढ़ा रहा था, कि थियरी को अनदेखा मत करो, थियरी को पिछड़ा हुआ मत मानो. या एक ज़माना था 2 years back, प्री पैंडेमिक, वे व्हेन MCQ स्टाइल में नहीं होता था ना, सो द थियरी वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे ध्यान देते ही नहीं थे. एंड आई वुड ऑल्सो सपोर्ट दैट. आई वुड से चलो बाद में पढ़ लेना, टाइम मिले तो पढ़ लेना. नो नो नो, नॉट लाइक दैट. When it is MCQ style, there is equal weightage given to the theory part and equal weightage given to the practical part, which is the correct way to go about it. So the second chapter, which is this particular chapter, it is telling you कि हमको analyze करना है, हमको interpret करना है. But what of financial statements? What do you mean by financial statements? एक होता है balance sheet, उसके बाद आएगा इनकम स्टेटमेंट. आई हैव नॉट गॉन टू इनकम स्टेटमेंट, वहाँ तक अपनी गाड़ी बिल्कुल गई नहीं है. ओके, जब भी जाएगी मैं आपको वो बता दूंगा. बट टुडे इज अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ मी सॉल्विंग फॉर यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैलेंस शीट. ओके, कौन सा बैलेंस शीट हमको सीखना है? देखो, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट वाला आपने सीख लिया है. इधर आता है लाइबिलिटी, इधर आता है एसेट. वी आर स्टडिंग अप डाउन, अप डाउन. हाँ, तो ये अप क्या होता है, डाउन क्या होता है? आई एम रिमाइंडिंग यू बिकॉज व्हेन आई एक्सप्लेन टू यू द क्वेश्चन विच इज वेयर हियर, मेरे पीछे है. ओके, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड द मार्किंग इन द क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है. लेटर ऑन व्हेन आई प्रिपेयर फॉर यू द सोल्यूशन, दैट इज वेरी सिंपल. हाउ और व्हाई? बिकॉज द मार्किंग इज समथिंग दैट यू अंडरस्टूड. अदरवाइज ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको वैसे भी आंसर पता चल जाएगा. बट कैन यू बाय हार्ट इट? एब्सोल्युटली नॉट. चलो किसी ने बाय हार्ट भी कर लिया, बट माय डियर, व्हाट इज द यूज ऑफ बाय हार्टिंग दिस? यू शुड नो कि सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होता है, यू शुड नो कि सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या क्या आता है. तो दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन लास्ट 2 lectures. अभी मैं ये गाड़ी वापस से रिपीट करता हूँ. ओके, सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब क्या था? पैसा कहाँ कहाँ से आया, कहाँ से आता है? अपने लोगों से आता है या पराये लोगों से आता है? अपने लोग का मतलब पढ़ लो, शेयर होल्डर्स फंड्स. पराये लोग का मतलब पढ़ लो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बोरोड फंड्स, दूसरों का पैसा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. इसको फिक्स्ड लाइबिलिटीज भी कहा जाता है. ओके, नाउ इन शेयर होल्डर्स फंड्स
सबसे पहला कैटेगरी क्या है, बिकॉज दे जस्ट राइट ऐड एंड लेस, तो मैंने वो ABC में किया है। पहला कैटेगरी है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कॉल इन अरियर आया तो माइनस, शेयर फॉरफीचर आया तो प्लस। ओके, कॉल इन अरियर मतलब वो पैसा जो नहीं मिला, शेयर फॉरफीचर मतलब वो पैसा जो छीन लिया, जो भी है कैपिटल का ही है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस। व्हाट आर रिजर्व्स? रिजर्व्स आर डिफरेंट पॉकेट्स अ कंपनी हैज, उसमें पैसा डाल के रखा है। क्यों अलग अलग पॉकेट में पैसा डाल के रखा है? क्योंकि पता नहीं कल कौन से पॉकेट से पैसा निकालना पड़े। वी डोंट नो, यू ऑल्सो डोंट नो, बट द कंपनी फॉलोज दिस प्रिंसिपल। क्या? कि हमको पैसा जमा करके रखना है। अगर एक बिल्डिंग को कभी ना कभी तो बिल्डिंग बूढ़ी हो जाएगी, अगर जो कमिटी बिल्डिंग को चलाती है, अगर वो कमिटी ऐसे सोचे, क्या जब बिल्डिंग को पेंटिंग लगेगा, जब बिल्डिंग को रिपेयर लगेगा, प्लास्टरिंग लगेगा, तब पैसा जमा करेंगे, तब अगर मेंबर्स के पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे? हाँ, तो एक काम करो, रिपेयर फंड क्रिएट करो, उसमें पैसा डालो, पैसा डालो, पैसा डालो, हर महीने 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, पुट मनी इनटू इट सो दैट व्हेन द टाइम फॉर रिपेयर कम्स द मनी इज अवेलेबल। यू डोंट हैव टू गो टू एवरी मेंबर 10,000 दो, 15,000 दो, 20,000 दो। अगर वो देने का ताकत नहीं रखता तो वो कैसे देगा आपको? एवरी कंपनी डज दैट, वो सारा पैसा थोड़ा थोड़ा करके रिजर्व्स में बचाती है। नाम अलग अलग देती है क्योंकि उसका पर्पस अलग अलग होता है। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। ओके, सो आगे जाते हैं नीचे। फिक्टिशियस एसेट क्या है? ये झूठा एसेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट माई सेल्फ। ओके, लिटिल आई एडजस्ट माई कैमरा। हाँ, ये झूठा एसेट है ना। अगर एसेट है ये तो उसको झूठा एसेट का नाम वो क्यों दे रहे हैं? मेनी अ टाइम्स कंपनीज जो पैसा खर्चा करते हैं रिसर्च में, डेवलपमेंट में, ओके, नए प्रोडक्ट के लॉन्च में, वो प्रोडक्ट पूरी तरह से पिट जाता है, पिट गया, बुश 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 बॉक्सिंग, पिट गया, तो कंपनी को नुकसान हो गया। अभी कंपनी सोचती है इतना बड़ा हमको नुकसान हो गया, हम ये कैसे छुपाए? देखो, छुपा नहीं सकते हो, खर्चा हुआ है तो पैसा गया है, दिखाना तो पड़ेगा। हाँ, तो वो क्या बोलते, एक काम करते हम लोग ना इसको फिक्टिशियस एसेट ऐसे कैटेगरी में लिखते हैं। ओके, थोड़ा आप नीचे आओगे, यू विल सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू विल सी डिफर्ड रेवेन्यू। ये क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, दीज आर एक्सपेंसेस, दे आर नॉट एसेट्स। इसका कोई फायदा नहीं है टेक्निकली, ओके, बट इसको कंपनी को स्प्रेड आउट करना है, स्प्रेड आउट। दे डोंट वांट टू राइट इट इन 1 ईयर। अगर कंपनी ने 4 करोड़ रुपीस, बिग अमाउंट, खर्चा किया एक प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पिट गया, सो व्हाट डज द कंपनी डू? इट राइट्स 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ इन 4 ईयर्स। तो क्या होता है, एक पुराना अमिताभ बच्चन जी का एड था, जोर का झटका धीरे से लगे, ऐसा ही है। जब कंपनी का बड़ा नुकसान होता है तो जोर का झटका, बट वो स्प्रेड आउट करती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, उसको कहते हैं धीरे से लगे। तो ये एसेट साइड पे आपको नजर आएगा। ओके, तो ऑब्वियसली ना फिक्टिशियस एसेट है तो एसेट में देखना चाहिए, बट ये झूठ मूठ का एसेट है, नॉट झूठ मूठ का, झूठा एसेट है, उतना समझ लो। देन यू हैड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इसमें क्या है, आप जो भी कर्जा लेते हो, डिबेंचर, बैंक लोन, टर्म लोन, पराया पैसा, पराया पैसा। इसमें एक है जिसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट। व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट? पब्लिक ने मुझको पैसा दिया, उसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट। सॉरी, इट्स नॉट फिक्स डिपॉजिट, मैंने पैसा बैंक में डाला नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक ने मुझ में डाला, उसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। तो वो होता है एक तरीके का बोरोड फंड। दिस इज द सोर्सेस साइड। पैसा किधर किधर से आया, पैसा खर्चा कहाँ पे करते हो, तो उसके रीजन तो और बहुत लंबा लिस्ट है। एप्लीकेशन, यू स्टार्ट विथ फिक्स्ड एसेट, उसमें देयर आर 2 कैटेगरीज, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, यू कैन टच, एंड इंटेंजिबल मतलब यू कैन टच, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या, दोज एसेट्स दैट आर विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, उसके नीचे लेस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, सिंपल। अगर यू आर यूज टू डूइंग ना, मशीन से डिप्रिसिएशन, फर्नीचर से डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग से डिप्रिसिएशन, तो उसी तरह प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मीन्स डिप्रिसिएशन अगर सम में दिया तो सॉल्व कर लेना,
माइनस कर लेना। हाँ, फिर इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपने आपका पैसा दूसरे कंपनी में डाला, शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे दूसरे कंपनी के, गवर्नमेंट में बॉन्ड खरीदे, नॉट दूसरे गवर्नमेंट के, अपने ही गवर्नमेंट के। ओके, तो यू इन्वेस्टेड योर मनी इन दैट। एंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आया तो आप वो भी लिख सकते हो। दीज आर बहानास फॉर इन्वेस्टमेंट, जो सेकेंड कैटेगरी है। लास्ट एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग, वर्किंग कैपिटल। इवन इन टूडेज लेक्चर, इवन इन द नेक्स्ट लेक्चर, द मोस्ट कंफ्यूजिंग। ओके, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? मनी, पैसा रिक्वायर्ड टू रन द कंपनी आराम से फॉर 1 year। तो यू रिक्वायर 2 things, current asset, current liability, current asset, current liability। current asset will show you पैसा कहाँ से आता है, current liability will show you पैसा कहाँ पे जाता है, बट 1 साल में, बिकॉज वर्किंग का मतलब 1 साल। ओके, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड वर्किंग। नाउ इन करंट एसेट, उसके अंदर 2 कैटेगरी है, क्विक, नॉन क्विक। इफ यू सी अबाउट, देयर इज नो कैटेगरी एज सच। ओके, ऐसा बोला है उन्होंने, क्विक, एक्चुअली दे हैव सेड वेरी क्लियरली, कैश एंड बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, लूज टूल्स, लोन गिवन। ओके, अगर आपने किसी को लोन दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्विक है। क्विक मतलब गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश। बट कुछ करंट एसेट थोड़ा नखरा करते हैं कन्वर्ट होने में, वो कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, एडवांस गिवन। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? मेरे गोदाम में रखा माल, क्या होगा उसका? मैं बेचूंगा, किसको? कस्टमर को। तो पहले मेरा क्लोजिंग स्टॉक डेटर बनेगा, फिर डेटर जाके क्या देगा? कैश। टाइम लगता है पैसे आने में। बिल रिसीवेबल, पैसे दे, डेटर पैसे दे। ओके, मैंने किसी को लोन दिया, पैसे दे, बट क्लोजिंग स्टॉक टाइम लेता है। सिमिलरली प्रीपेड या एडवांस पेड, व्हेन यू गिव एडवांस, पैसे थोड़ी आते, सर्विस आती है, सामने वाला बंदा आपके लिए काम करेगा, बट पैसे लौटाने वाला नहीं है, इसके लिए नॉन क्विक। हाँ, व्हेन यू कम टू करंट लाइबिलिटी, ऑल्सो क्विक लाइबिलिटी एंड नॉन क्विक। नॉन क्विक में आप क्या याद रखना? बैंक ओवरड्राफ्ट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, थोड़ा नीचे है। ओके, बट वो थोड़ा रेयर है, वो बाद में हम लोग कर लेंगे। ओके, राइट नाउ यू ओनली अंडरस्टैंड कि बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक होता है। दैट मीन्स अगर बैंक में कोई एसएमएस भेजता है, तुम्हारा ओवरड्राफ्ट है, जल्दी से भरो, यू डोंट हैव टू पे इट इमीडिएटली, आप उसको टुकड़ों में दे सकते हो, टुकड़ों में। इफ इट इज ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस, बराबर। नेगेटिव बैलेंस अगर -10,000 है, आप 2,000 दो, 3,000 दो, लिटिल लिटिल लिटिल, यू डोंट हैव टू गिव द एंटायर मनी टुगेदर। हाँ, क्विक में नॉर्मल, क्रेडिटर, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट खास वंस। क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स, ये इधर ऊपर है, और प्रपोज डिविडेंड। आज ये अनक्लेम डिविडेंड भी आने वाला है। व्हाट इज प्रोविजन फॉर टैक्स? आपने जो आपके शेयर होल्डर्स को वादा किया है दैट यू विल पे देम देयर डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर, तो उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड। ओके, अगर आपने, सॉरी टैक्स का था, अगर आपने गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया, बट प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं, आपको भरना ही पड़ेगा, बट एवरी ईयर यू हैव टू सेव मनी to pay the tax the next year. That is provision for tax and proposed dividend. You have to save money to keep your shareholders happy. अगर उनको happy नहीं रखोगे तो वो तुमको पैसा क्यों देने वाले हैं? ओके, वो आपके कंपनी के बारे में अच्छा जाके दूसरों से क्यों चर्चा करेगी, क्यों बात करेगी? एंड यहाँ पर है अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड का मतलब क्या है? देखो भाई, डिविडेंड का टाइम आया, मैंने आई वुडंट से आजकल ऐसा होता है, बट पहले ऐसे होता था जहाँ पे सभी के घर पे मेल जाता था। ओके, मेल का मतलब स्त्रीलिंग पुलिंग नहीं, ओके, चिट्ठी जाती थी, एंड सब शेयर होल्डर्स को एक चेक दिया जाता था डिविडेंड का। कभी कभी वो शेयर होल्डर घर पे नहीं है, तो फिर पोस्टमैन वापस लेके आ जाता, उसको कहते थे अनक्लेम्ड डिविडेंड। सो द कंपनी कुड नॉट से अपनी जेब में रख लो, नहीं, आपको पे करना है। जब भी वो शेयर होल्डर आ जाएगा, वो किधर भी गया हो, आ जाएगा, उसका हक बनता है, यू हैव टू पे इट। नाउअडेज मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, किसी के घर पे मेल फीमेल जाता नहीं है। ओके, सो इट्स ऑल ऑनलाइन, सबका बैंक अकाउंट का डिटेल होता है। ओके, हाँ, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज इफ द शेयर होल्डर इज नो लॉन्गर अलाइव,
जिंदा ही नहीं, अकाउंट है बट वो जिंदा नहीं है, तो पैसा जाके वहाँ पे ही पड़ा हुआ रहता है. ओके, और अगर वो अकाउंट बंद हो गया, शेयर द कंपनी वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, सो it will hit the account and come back, the money will come back because that account is no longer existing. किसी ने तो बोल दिया रहेगा ये अकाउंट आप बंद करो because the person is deceased, वो जिंदा नहीं है. हाँ, तो in these unique situations dividend unclaim होता है, then you have to pay to whoever is the concerned party in relation to that particular person who was deceased. This is जितना हो सके repetition मेरी तरफ से. Right now what am I doing? I'm going into the question and I am giving you the marking. Okay, it is from the Manan Prakashan textbook. जो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर है वो टाइटल में दिया गया है. ओके, अगर वो पेज पे क्वेश्चन नंबर आपको नहीं मिलता, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता देना, बिकॉज एवरी ईयर द पेज नंबर क्वेश्चन नंबर कीप्स ऑन चेंजिंग. सो आई विल रिफ्रेश द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड द पेज नंबर. Following is the balance sheet of Mahavir Limited as on 31st March 2014. Now there is a list of items given on two sides, liability and assets. ये स्टाइल थोड़ा सिंपल है. जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा ना, ऐसा ही दिया बट बैलेंस शीट नहीं दिया, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर भी याद से देख लेना. शेअर कॅपिटल कुठे जाणार? हम शेअर कॅपिटलमध्ये, तो आई एम मार्किंग. शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब रिजर्व्स है, तो रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस. डिबेंचर्स, वो 11% हो, 2% हो, 5% हो, 6% हो, 8% हो, 10% हो, इट इज़ अ लोन, बोरोड फंड. बैंक लोन ऑल्सो इज बोरोड फंड. लास्ट टाइम नहीं था, आज है. बैंक ओवरड्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम नहीं था. व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? It's a current liability. You have to pay the bank, but you can pay it little, थोड़ा थोड़ा थोड़ा. तो इसको नॉन क्विक कहते हैं. So it is current liability, non quick. Creditor is quick and provision for tax, मतलब जो आपको सरकार को टैक्स देना है ना, वो भी quick. Now this is the marking of the liability side. अभी एसेट का भी कर लेते हैं, तो इस तरफ पे आते हैं. फर्स्ट, गुडविल. You can't touch goodwill. You see, it's a fixed asset, but touch नहीं कर सकते. So it is intangible. Land, plant, furniture, उसको आप touch कर सकते हो. तो आप, मैंने लिखा है, it doesn't look good, but FA tangible, FA tangible, FA tangible. तो clarify कर लेता हूँ. Otherwise तो योग में से sir you are body shaming land and plant. नहीं, ऐसा नहीं. I'm not calling them fat, but FA tangible. ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता है, सिंपल. अकाउंट्स रिसीवेबल, आप बिल रिसीवेबल बोल सकते हो. और डेटर, बिकॉज डेटर से पैसा लेना है ना, सो इट इज क्विक. करंट एसेट. इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, नॉन क्विक, क्योंकि आपको पहला वो डेटर बनेगा, डेटर से पैसा आएगा. देन प्रीपेड, नॉन क्विक, क्योंकि प्रीपेड का तो पैसा आएगा ही नहीं, सर्विस आएगा बट पैसा नहीं आएगा. कैश एट बैंक इज क्विक. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो झूठा एसेट है, झूठा एसेट है, कोई मतलब का नहीं है. वी कॉल इट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. सो माय डियर, दिस इज द मार्किंग. आपको ये मार्किंग आपके टेक्स्ट बुक में करना है, एंड मार्किंग में आपको और बेहतर बनना है. व्हेन यू गेट सुपर बैड मार्किंग, इसके बाद का सोल्यूशन चुटकी बजा के हो जाएगा. नाउ देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड. 1, फिक्स्ड एसेट क्या है? 2, इंटेंजिबल एसेट क्या है? 3, फिक्टिशियस एसेट क्या है? 4, क्विक एसेट, करंट एसेट. एज एंड व्हेन आई सॉल्व दी क्वेश्चन, बाद में ये हम लोग नॉट सॉल्व करेंगे, हम लोग ये लिख के दे देंगे. ओके, हाउ डू आई सॉल्व? यू सी, यू सॉल्व इन द वर्टिकल फॉर्मेट एज पर द ऑर्डर ऑफ वर्टिकल. उसमें जस्ट टेल यू, देखो स्टार्ट होगा सोर्सेज ऑफ फंड से, लेटर ऑन इट विल गो टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. मेनी ऑफ यू वुड बी, अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो, जो मेरी तो दिली तमन्ना है दैट यू डू इट एक्चुअली, डोंट जस्ट लुक एट दिस लेक्चर, यू सॉल्व इट. सर वो गैप कितना है? आप लोग मत लिखो, आप लोग सिर्फ सोर्सेज लिखो, उसके बाद जैसे मैं सॉल्व करूँ आप आगे सॉल्व करना. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि कितनी कैटेगरीज है इसमें, बिकॉज एवरी सम में ये बदलेगा. कुछ सम में एप्लीकेशन वो पेज पे आएगा ही नहीं, नेक्स्ट पेज पे आएगा, क्योंकि लाइन्स उतने काफ़ी नहीं है. अच्छा, नाउ इन सोर्सेज यू गेट 2 कैटेगरीज. शेयर होल्डर्स फंड्स, उसको ओनर्स फंड्स कहते हैं, उसको
ओन फंड्स कहते हैं, उसको नेट वर्थ कहते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड्स कहते हैं या बोरोड फंड्स। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल आंसर आता है। एप्लीकेशन में 3 बहाने, एक फिक्स्ड एसेट होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। अगर आप सोर्सेस को ऐड करो यू विल गेट टोटल फंड रेज्ड, ओके, 1 + 2, रोमन नंबर 1 + 2, और ये मेरे पीछे आएगा। अगर आप एप्लीकेशन को ऐड करो देन टोटल फंड एम्प्लॉयड 1 + 2 + 3, ओके। नाउ व्हाट, नाउ वी स्टार्ट अ सॉल्यूशन। पहले क्या था, आपके पास टेक्स्ट बुक सामने, आप टेक्स्ट बुक देख लो, मैं बीच बीच में क्वेश्चन दिखा दूंगा। शेयर कैपिटल, तो चलो लिख लेते हैं शेयर कैपिटल कितना है, 3 lakhs। इफ देयर वाज इक्विटी शेयर्स, इफ देयर वाज प्रेफरेंस शेयर्स, तो आई वुड हैव रिटन इट सेपरेटली, अलग अलग से, ओके। कॉल इन अर्लियर माइनस एंड शेयर फॉर फ्यूचर प्लस, नहीं है, सिंपल है शेयर कैपिटल। नेक्स्ट रिजर्व है, उसमें 3 है, एक तो शेयर प्रीमियम, एक जनरल रिजर्व, एक प्रॉफिट एंड लॉस। प्लीज नोट दिस प्रॉफिट एंड लॉस इज क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू यू नो इट्स क्रेडिट? इट्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ना, इसके लिए क्रेडिट मतलब इनकम, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स बोथ प्रॉफिट और लॉस। व्हेन इज इट लॉस? इफ इट कम्स ऑन द एसेट साइड, इट कैन कम ऑन द एसेट साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एसेट साइड पे आए तो वो डेबिट होगा, डेबिट होने से क्या हो जाएगा, वो लॉस होगा, देन इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। आई रिपीट, दोबारा रिपीट करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस 2 रूपी है, 2 चेहरे, प्रॉफिट एंड लॉस। कब प्रॉफिट कब लॉस? इफ इट इज क्रेडिट इट इज प्रॉफिट, एंड विच इट इज राइट नाउ, लाइबिलिटी में क्रेडिट। बट अगर एसेट में आए या वो लिखे डेबिट, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट रिजर्व, because it is not profit, it is miscellaneous expenditure because it is loss। तो याद रखना, हाँ, ओके। तो ये तीनों तो मैं 1 by 1 लिख लेता हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस। इफ बैकग्राउंड में आपको काफ़ी शोर नज़र आ रहा है तो वो सच है, क्योंकि हमारे घर में ट्यूशन चल रहा है और ट्यूशन के बच्चों को अभी अलविदा कहा जा रहा है, तो वो कभी चुपचाप जाते ही नहीं है, ओके। सो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तीनों को, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड व्हाट यू गेट टोटल ऑफ बी पॉइंट इज 1,64,000, ओके। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद सी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाट कम्स। इसको फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट याद रखना, मतलब झूठा एसेट। इसमें क्या आएगा बाबा? एसेट में देखो लास्ट आइटम प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी इट इज झूठा एसेट, तो लिख लेते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर सी, शेयर होल्डर्स फंड्स और ओनर्स फंड्स और प्रोप्राइटर्स फंड्स और नेट वर्थ इज व्हाट? ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। तो अगर आप कर लो a प्लस बी, 3 लाख प्लस 1,64,000, 4,64,000 माइनस 10, 4,54,000 शेयर होल्डर्स फंड का पैसा, वेल आंसर आ गया। फिर बोरोड फंड में क्या आएगा? डिबेंचर्स और बैंक लोन था, आप टेक्स्ट बुक में देखो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो बोरोड फंड में तो हमको वही लिखना है, लिख देता हूँ 11% डिबेंचर्स 1 लाख, बैंक लोन 70,000, ये दोनों को ऐड करेगी तो बोरोड फंड का टोटल आ जाएगा विच इज 1,70,000। नाउ यू हैव रोमन नंबर 1 विच इज शेयर होल्डर्स मनी एंड रोमन नंबर 2 विच इज बोरोड फंड। दोनों को ऐड करो तो तुमको टोटल फंड मिलेगा, तो वही हमारा नेक्स्ट काम है, 6,24,000। दिस इज वन साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। नाउ वी आर डूइंग द अदर साइड, तो अदर साइड जो मेरे पीछे आंसर आएगा ना, इट शुड बी 6,24,000। इफ इट इज नॉट देन गलत है, कहाँ ना कहाँ पे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में मिस्टेक हुआ है, ओके। क्वेश्चन, पहले टेंजिबल में क्या आएगा? लैंड आएगा, बिल्डिंग आएगा, मशीन आएगा, प्लांट आएगा, मोटर कार आएगा, यहाँ पे लैंड प्लांट फर्नीचर। सो लेट मी राइट दैट, लैंड प्लांट फर्नीचर टेंजिबल एसेट। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप बोलोगे सर आप ये पेज पे लिख रहे हो, तो आप मत लिखो ना, आप नेक्स्ट पेज पे लिखो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वही पेज पे लिखना है, नेक्स्ट पेज पे लिख लो, लेफ्ट वाला राइट वाला आपकी मर्जी,
plant, and then right above furniture 3 थे. देर इज नो डिप्रीसिएशन, है तो माइनस करेंगे बट ये सब में नहीं है. हाँ तो ऐड कर लो 2,54,000. ए इंटेंजिबल है, गुडविल इंटेंजिबल है तो लिख लेता हूँ मैं, नहीं है तो डैश डाल देंगे. हाउ मच 40,000. बी ए प्लस बी मतलब टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल. फिक्स्ड एसेट का आंसर रोमन नंबर 1 2,94,000. सो आई रिपीट, फर्स्ट टेंजिबल लिस्ट देन इंटेंजिबल लिस्ट. टेंजिबल में कभी कभी डिप्रीसिएशन आएगा तो माइनस कर लेना. फिर इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, है ना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 1,60,000. तो लेट्स राइट दैट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 1,60,000. ओके, दैट्स रोमन नंबर 2. टिल हियर वर्टिकल बैलेंस शीट रीजनेबल होता है. जैसे वर्किंग कैपिटल पे पहुंच जाता है तो थोड़ा बिजली कड़कती है, थोड़ा पॉसिबिलिटी है कंफ्यूजन का. ओके, नाउ व्हाट कंफ्यूजन. करंट एसेट आएगा, करंट एसेट के अंदर पहले क्विक बाद में नॉन क्विक. नॉन क्विक में यू मे गेट स्टॉक, यू मे गेट एडवांस पेड, यू मे गेट प्री पेड, बाकी आप क्विक में लिख लो. सो कितने हैं देखो, मार्किंग किए तो इट बिकम्स दैट मच मोर सिंपलर फॉर यू. So above me if you see accounts receivable and cash at bank. Non-quick में inventory and prepaid. तो order is important. पहला, दूसरा, तीसरा. ये ऐसा नहीं है कि भाई लाइन लगी है और आप बीच में घुस गए. No, order is very important. पहले accounts receivable, you can call it debtors, and there was cash at bank I think so. ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्विक का आंसर आएगा. ये क्विक का आंसर आपके पास क्यों होना चाहिए? बिकॉज द क्वेश्चन एट द बॉटम हैज आस्क्ड, बताओ हमको क्विक एंड नॉन क्विक अलग से. अभी तो आपको लिखना पड़ेगा. हाँ, अभी नॉन क्विक ऐड करो, इसमें ऐड करो. तो नॉन क्विक का मसाला डाल दिया, इन्वेंटरीज एंड स्टॉक एंड प्रीपेड और एडवांस पेड. प्रीपेड और एडवांस पेड. हाँ, आई विल जस्ट शिफ्ट माई पोजिशन सो दैट आपका व्यू क्लियर रहे. टोटल करंट एसेट कितना है? 3,50,000. नाउ आई गो टू द क्वेश्चन. इफ आई एम गोइंग फास्ट, विच आई डू बिलीव, आई एम नॉट सेइंग, मैं खुद बोलूँगा आपको, आई एम नॉट गोइंग स्लो एज सच, बट यू कैन ऑलवेज जस्ट पॉज द वीडियो, द लेक्चर, राइट एवरीथिंग एंड देन अनपॉज एंड मूव ऑन विथ मी. ओके, राइट नाउ देयर इज नथिंग फॉर मी टू एक्सप्लेन. पहले क्विक लिखा, उसके नीचे नॉन क्विक, ऐड ऐड ऐड, टोटल आ गया. अभी इफ यू लुक एट द लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखिएगा, वो नॉन क्विक है तो वो बाद में आएगा. पहले क्विक लिख लो. तो क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, चलो लिख लेते हैं. ओके, सो करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर पहले सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000. वो द अंडरलाइन ना शुड हैव बीन फॉर करंट लाइबिलिटी, एक लाइन नीचे आ गया. ओके, तो थोड़ा गड़बड़ इन प्रेजेंटेशन. क्विक करंट लाइबिलिटी 1,40,000. बैंक ओवरड्राफ्ट एक ही है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो प्री रिसीव्ड है बट वो ये सब में नहीं है, तो आई विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ. ये दोनों को ऐड करूंगा मैं तो मुझे टोटल करंट लाइबिलिटी मिलेगा. टोटल, बिकॉज टोटल करंट एसेट minus total current liability is my answer of working capital. Okay, TCA minus TCL, TCA minus TCL, working capital, which is Roman number 3. 1 2 3. Okay, 1,70,000. अब क्या करूँ? अभी ऐड कर लो ना, ऊपर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐड कर लो. यू मस्ट गो टू, ये जो है ना यहाँ पे 6,24,000. इफ यू डोंट गेट इट, 1 रुपया या वहाँ पे हो गया तो गोलमाल है, फ्रॉड है, एरर है, गोलमाल है. नाउ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, आप चाहो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ. ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन राइट एवरीथिंग, बट हाँ मुझे स्क्रीन पर आना पड़ेगा, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन. आई एम चेंजिंग दिस सीन बिकॉज द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर सर्टन आंसर्स. आपने सब आंसर कर दिया है, everything has been found out. We just have to pick up the information from here. So hold on, let me quickly show you कि question ने
क्या क्वेश्चन किया है. फर्स्ट फिक्स्ड एसेट बताओ. नो प्रॉब्लम. आई थिंक फिक्स्ड एसेट ऊपर है. टेंजिबल इंटेंजिबल 2,94,000 लिख लिया. इंटेंजिबल एसेट बताओ. नो प्रॉब्लम. गुडविल 40,000. फिक्टिशियस एसेट, झूठा एसेट, वो तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है ना, मिसलेनियस, तो वो कितना है उस तरफ है 10,000, तो वो लिख लेते हैं. क्विक एसेट, करंट एसेट, मतलब दोनों में साथ में देख लेता हूँ. ऊपर आपको दिखेगा क्विक एसेट इज 2,20,000, करंट एसेट इज 3,50,000, तो वो लिख लिया हमने. वेरी सिंपल. दे जस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस और हम ये बताते जा रहे हैं. नेट वर्थ मतलब क्या? अरे ओनर्स फंड, मालिक का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड्स. हाँ, तो वो उधर थोड़ा दूर है. 4,54,000. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये बोरोड फंड्स है. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ये बोरोड फंड्स है. 1,70,000. वी हैव अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, तो थोड़ा और बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा. क्विक लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल, वो मेरे कंधे के पीछे आने वाला है. क्विक लाइबिलिटी 1,40,000, वर्किंग कैपिटल 1,70,000. And that is it as far as this lecture, this teaching and this explanation is concerned. I hope that the concept of vertical balance sheet थोड़ा थोड़ा ही सही बट आपके दिमाग में घर कर रहा है, and you are little understanding what is a vertical balance sheet, how do you tackle it, how do you mark it, and how do you solve it. Because connected to vertical balance sheet and the vertical income statement जो थोड़े टाइम के बाद होगा, there are multiple things that you have to do doing in future in this subject of management accountancy. If you know someone who requires this chapter, please tell them so that they can watch these free lectures and they can benefit from it. Okay, अगर आपके पास कोई सजेशन है, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई चीज़ पॉइंट आउट करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया दबा दीजिए, और खुशखबरी हमारे ये पर्टिकुलर चैनल की दूसरों तक जितने जल्दी हो सके फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, स्टोरी के द्वारा आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए. यू वुड बी अ मीन्स of taking the good news from this channel about the lectures and the teaching to many more people. Okay, it would be a big help. Okay, till the time we meet again, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. Okay, stay home जितना हो सके, stay safe. Good day to all of you. God bless. Bye.